Let's go to the book of Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. और इब्रानियों की किताब में जाएंगे 6वां अध्याय 1 से 3 आयत को हम पढ़ेंगे। We will read the book of Hebrews chapter 6 first 3 verses. इब्रानियों 6वां अध्याय 1 से 3 आयत It says, therefore leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go to perfection, not laying again the foundation of the repentance from dead works and the faith towards God, of the doctrine of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Can we quickly have a small prayer? आइए हम छोटी प्रार्थना करें। Gracious Father, we come before you. अनुग्रहकारी पिता आपके पास हम आते हैं। Lord, we hand over ourselves into thy hand. प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। Spirit of the living God, we welcome you once again to open our understanding and our hearing. जीवित परमेश्वर के आत्मा में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कि हमारी समझ की आंखों को और कानों को खोल दें So प्रभु that जी, we can understand your word, we can perceive what you're going to talk to us today. ताकि प्रभु जी आपका वचन हम समझने पाएं, जो बात आज आप हमसे करने वाले हैं वो अपने दिलों में रखने पाएं। Lord, we should not only be the hearer of the word, but the doer of the word. प्रभु हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले बनने पाएं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा quicken our spirit today. हमारी आत्माओं को तैयार कर दे Talk to प्रभु us जी, today. हमसे बात करें आज प्रभु, Encourage us, O और Lord. हमें उत्साहित करें प्रभु। Let us go as a blessing for our nation. होने दीजिए प्रभु एक देश के लिए आशीष के रूप में पाकर हम आज जाने पाएं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। The topic that I'm going to preach quickly is the danger of not moving forward. और जिस विषय के बारे में आपसे जल्दी से बात करने वाला हूं वो है आगे न बढ़ने का खतरा। Hallelujah. हालेलुया। Once again, if you people remember, you can remember this topic, the danger of not moving forward. और अगर कुछ लोगों को याद है तो आप याद कर सकते हैं आगे न बढ़ने का खतरा। ये Let's try विषय to understand what the writer of Hebrews is trying to say here. आइए देखें यहाँ पर समझें कि इब्रानियों का जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। He says, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ. और वो ये कह रहा है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ दें। He is telling us to leave something. वो हमसे कह रहा है कि हमको छोड़ दें, Leaving the elementary principles, और शुरुआती शिक्षाओं को छोड़ दें, the elementary doctrine, शुरुआती सिद्धांतों को छोड़ दें and move towards the perfection. और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। So moving towards perfection is very, very important for our life. सिद्धता की ओर बढ़ते जाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। It is dangerous if our life is not moving and we are stuck. और अगर हमारा जीवन रुका हुआ है, अगर हम एक जगह पर रुके हुए हैं तो ये खतरे की बात है। You might be eating, drinking, doing something, but you are stuck in life. शायद आप हो सकता है खाना पीना कर रहे हो और घूमने फिरने जा रहे हो, लेकिन अगर आप रुके हुए हैं तो ये खतरा है। You may be coming to church and worshiping God and having fasting prayers and you're praying, but you can be stuck in your life. आप कलीसिया में आ रहे होंगे, आप रविवार कलीसिया में आ रहे होंगे, आप उपवास प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आप जीवन में एक जगह फंसे हैं तब भी। We never know what is the real time when really we are stuck in our life and we are not moving forward. और हमें सच में पता ही नहीं चलता कि वो समय कब आ जाता है जब अपने जीवन में हम रुक जाते हैं और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, Holy Spirit comes like a mighty rushing wind. पवित्र आत्मा एक बड़ी आंधी के समान आता है, But when he leaves, we never know. लेकिन जब वो जाता है तब पता ही नहीं चलता। Hallelujah. हालेलुया। Samson had his anointing over him. और शिमशोन के ऊपर वो अभिषेक था, And every time he was going to Delilah, और हर समय जब दलीला के पास जा रहा था and he never knew that he was trying to challenge God, और उसको पता ही नहीं लग पा रहा था कि वो परमेश्वर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। but really when the anointing left him, when the Spirit of the Lord left him, he never knew what happened to him. लेकिन सच में जब परमेश्वर का वो अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया तो उसको पता ही नहीं चला। He thought, I will come back again with the same power. और उसको लगा कि वो उसी सामर्थ से फिर से उठकर खड़ा हो He thought he जाएगा। will come back with the same anointing. उसको लगा उसी अभिषेक से वो फिर से खड़ा होगा। But this time, लेकिन इस there बार was no power.
power. कोई सामर्थ नहीं There was थी, no anointing. कोई अभिषेक नहीं था, Because sin caught the hold of him. क्योंकि उस पाप ने उसको पकड़ लिया था। Hallelujah. हालेलुया। Today I'm going to talk about what is the danger moment, what is dangerous when you're not moving forward. तो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या खतरा हमारे जीवन में है। Devil will always want to give you shock and trouble to stop you where you are. और शैतान आपको हमेशा हैरान करेगा, हमेशा आपको हिलाने की कोशिश करेगा, जहां पर आप हैं उस जगह पर रोकने के लिए। And you need to rebuke the Satan. You और need to आपको boldly tell him that, hey, you know what? I have reached so far and God is with me and I am moving forward. और जब वो ऐसा करे तो आपको शैतान को डांटने की जरूरत है, ये बोलते हुए कि वो परमेश्वर जो मुझे यहां तक लेकर आया है वो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। Paul is giving us a very, very important suggestion. He's telling us, leave what you have learned so far. Let's read that verse once again. You will और understand पौलुस more. बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा है। वो कहता है हम आरंभिक शिक्षाओं को छोड़ दें, हाँ। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Amen. Amen. Moving towards the perfection. हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते Moving towards जाएं, the perfection. सिद्धता की ओर। And then he says, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. और फिर वो कहता है कि और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और Baptism and laying hands और and बपतिस्मा resurrection of और the dead. हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने के नींव फिर से न डालें। If you are talking about same thing over and over, if you are talking the same sermon over and over, people are not going to listen that. और अगर आप बार बार एक ही बात के बारे में बात करेंगे, एक ही प्रचार का प्रचार करते रहेंगे तो लोग उसको नहीं सुनेंगे, Because they want to grow. क्योंकि वो बढ़ना चाहते हैं, They want to do वो something. कुछ करना चाहते हैं, They really want to see some visible, tangible results in their वो life. सच में अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने कुछ फल देखना चाहते हैं। There is a danger being stagnant in your life. और रुके हुए जीवन में खतरा है आप में। There is a danger when you are not progressive and you are not bearing fruit. और जब आप फल नहीं ला रहे हैं, उन्नति नहीं कर रहे हैं, तब खतरा है आपके There जीवन is में। danger when you are eating yesterday's bread today. और खतरा है जब आप कल के खाने को आज बासी खाना करके खाते हैं, Even if that bread is given by God to और you. चाहे वो रोटी परमेश्वर ही के द्वारा क्यों ना दी गई हो आपको। God doesn't want you to eat the bread. He wants to give you the daily bread. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप रोटी खाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप रोज की रोटी रोज खाएं। That's why he says, ask for the daily bread. और इसलिए उसने कहा कि तुम रोज की रोटी तुम मुझसे मांगो। You cannot walk today with the revelation of past 10 years. और आप आज के जीवन में पिछले 10 साल के प्रकाशनों को लेकर नहीं चल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The replication team is here. और रेप्लिकेशन टीम यहाँ पर है। 10 years ago, और 10 साल पहले there was no कोई replication. रेप्लिकेशन नहीं था, There was nothing called replication. रेप्लिकेशन जैसा नहीं था, But our hearts were open. लेकिन हमारे दिल खोले हुए थे। We wanted to grow. हम बढ़ना चाहते We थे, wanted to move हम forward. आगे बढ़ना चाहते थे, We were thirsty. और हम भूखे We थे, were हम hungry. प्यासे थे, We were not हम satisfied. संतुष्ट नहीं थे। Lord, I want to do more. और प्रभु मैं और करना चाहता I हूँ, want to move मैं further. आगे बढ़ना चाहता हूँ, I am doing the ministry. मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। If I ask all these ministers here, अगर मैं सभी सेवकों से यहाँ से पूछूं, they were all in the ministry. तो सभी सेविकाएं में थे, They were all doing the right वो thing. सभी सही काम कर रहे थे, They were in the Bible colleges. बाइबल कॉलेजेस में थे, They were having great ministry. और बड़ी बड़ी सेविकाएं वो कर रहे थे। But if they have accepted the replication, they understand something was not happening and we were not moving forward the way we had to. लेकिन उन्होंने जब एप्लीकेशन को अपनाया और जब स्वीकारा तो उन्होंने इस बात को समझा कि कुछ तो ऐसा था कि जिस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए था, अभी तक हम वैसे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब Hallelujah. हम बढ़ने लग गए And हैं। that hunger और वो भूख and that thirst और वो प्यास and that desire to move forward और वो आगे बढ़ने की इच्छा has quickened their spirit उनकी आत्माओं को तैयार कर दिया, Open उसने their hearts उनके दिलों को खोल to दिया accept the movement of replication एप्लीकेशन के आंदोलन को ले so लेने that के they लिए, can move towards the perfection. ताकि वो सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। Paul says perfection. पौलुस कहता है सिद्धता, Paul says पौलुस perfection. कहता है सिद्धता। So what I want to tell you is, तो एक बात जो मैं आपको बताना चाहता we हूँ, cannot preach the love of God every Sunday. हम हर रविवार आकर परमेश्वर के प्रेम का प्रचार नहीं कर सकते Hey, हैं। babies, the time of love is over. वो बालकों प्यार का समय खत्म हो गया है, And the time of salvation is over. वो प्यार का समय खत्म हो गया है, Time of baptism is over. बपतिस्मा का समय खत्म हो रहा The है, time of laying hands and praying is over. रखकर प्रार्थना करने का समय जा रहा है। It is your time now. ये आपका समय है। Somebody shout, it is my कोई time. कहे ये मेरा समय है, Somebody shout, it is ये my मेरा time. समय है, Somebody shout, it is my कोई time. कहे ये मेरा समय है, I have to move. मुझे बढ़ना है, I have to do
something. मुझे कुछ करना है। Now it's my time to lay hands. मेरा समय है आगे बढ़ने का, It's my time to lay hands. और मेरा समय है कि मैं हाथ रखूं। Come on, somebody shout hallelujah. हालेलुया, Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Oh my God, oh my God. You need to move forward. Tell your neighbor, we आगे need to बढ़ने की move जरूरत है। forward. Tell your neighbor, अपने we need to पड़ोसी move को ये forward. कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। We need to move आगे forward. बढ़ने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, We need to move हमें forward. आगे बढ़ने की जरूरत है। Oh my God. Some churches are still preaching about salvation. और कुछ कलीसियाएं आज भी उद्धार का प्रचार कर रही हैं। Oh, it is so disgusting to see the believers, they stand when Jesus calls, call. How many want to accept Jesus? All the believers stand, they want to accept this Jesus in Jesus calls ministry 10th time. Oh, come on, am I talking to somebody? I'm making some sense here. और ये बात सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है कि जब जीसस कॉल्स की मिनिस्ट्री ये कहती है कि आप में से कितने लोग मसीह को अपनाना चाहते हैं, तो वो 10 साल वाले विश्वासी वो 10वीं बार जीसस कॉल की मिनिस्ट्री में कहते हैं हाँ हम भी यीशु को अपना रहे हैं। 10 times? 10वीं बार। Are you crazy? क्या पागल हो गए? Are you out of your mind? क्या अपना दिमाग नहीं काम कर रहा? They are calling the new people. वो नए लोगों को बुला रहे हैं। All Jesus calls ministry. पूरे जीसस कॉल All the मिनिस्ट्री believer comes. और सभी विश्वासी आ जाते हैं And they're preaching the gospel to the believers. और वो विश्वासियों को ही सुसमाचार सुना रहे हैं। And believers are crying as if they're listening the gospel first time. और विश्वासी ऐसे रो रहे हैं कि जैसे पहली बार सुसमाचार वो सुन रहे हैं। You are babies. आप बालक हैं अभी भी, You are stuck somewhere. आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं, Problem. कुछ तो परेशानी है। The stuck food gives problem to the body. और फंसा हुआ भोजन, रुका हुआ भोजन, बासी भोजन आपका पेट खराब करता है। The stuck believer gives problem to the body of Christ. और बासी विश्वासी भी मसीह की देह को बासी कर देता है। Once again. बासी विश्वासी भी मसीह की देह को बासी करता है। As the stuck food gives problem to your और body, जैसे बासी भोजन आपका पेट खराब करता है, in the same way the stuck believers give problem to the body of और Christ. वैसे ही बासी विश्वासी भी वो बासी कर देते हैं मसीह की देह को। God doesn't want to stuck people who are stuck. परमेश्वर फंसे हुए लोगों को, बासी लोगों को नहीं चाहता है। God wants you to be in the motion. परमेश्वर चाहता है आप एक आंदोलन में हो, एक चलन में हो। You have to be in the motion. आपको एक चलन में चलना है। Somebody say, I am in the motion. कोई कहे मैं एक चलन में, एक आंदोलन में हूँ। I am walking. मैं चल रहा हूँ, I am running. मैं दौड़ रहा हूँ। Oh, hallelujah. Malchaba Shantaba. I believe God is talking to you. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सभी से बात कर रहा है। God gave them manna परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया and said, I'm going to give you the manna every day. और उनसे ये कहा कि मैं तुम्हें हर रोज मन्ना दूंगा। You can go back home and read in the book of Exodus chapter 16. आप निर्गमन की किताब 16वें अध्याय में घर जाकर पढ़ सकते हैं इस बात को। And you know what? और आप जानते क्या हुआ? Some smart greedy people, और कुछ लालची चतुर लोग, some smart greedy people, कुछ लालची चतुर लोगों ने क्या किया? they went to collect the manna for tomorrow. और वो कल के लिए भी मन्ना इकट्ठा करने चले गए। Smart people, और बहुत चतुर थे, planning people, योजना बनाने वाले लोग, LIC people. LIC वाले लोग। Oh, come on. I'm sorry, I'm not against the LIC, but I और have मैं to say विरोध this. नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। And you know what happened? और क्या आप जानते क्या हुआ? The manna gets vomit. और वो जो मन्ना था उसमें कीड़े लगने लग गए। God is trying to give them a message. परमेश्वर उनको संदेश देना चाहता था। Are you crazy? तुम पागल हो गए हो क्या? You think it is impossible for you? Is it not impossible for me? और तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए शायद कल संभव नहीं होगा, ये मेरे लिए असंभव नहीं है। You are measuring my strength according to your strength. और तुम अपनी ताकत, अपनी क्षमता को मेरी ताकत से नाप रहे हो। I am the omnipotent, omniscient, omnipresent God. और मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हूँ। And I am able, और मैं योग्य हूँ, I am eligible और मैं काबिल हूँ to give you manna every day. तुम्हें हर रोज मन्ना देने के लिए। Somebody shout, I'm going to depend on my daily bread. और कोई कहे मैं अपनी रोज की रोटी पर निर्भर रहूंगा। Hallelujah. मैं अपनी रोज की रोटी पर निर्भर रहूंगा। Is some alive people sitting out here? क्या कोई जिंदा लोग यहाँ पर हैं?
Pastor, can you preach gospel to me once again? I didn't क्या get आप फिर से सुसमाचार मुझे सुनाएंगे? मुझे समझ नहीं आया था। Pastor, can you lay your hands upon me and pray? I am 10 years old believer. I'm wasting my time. Can you lay your hands? मैं 10 साल का विश्वासी हूँ, क्या आप हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे मेरे लिए? Oh, my dear sister. वो मेरी प्रिय बहन, After 10 years, 10 साल के बाद you don't need my hand. और तुम्हें मेरे हाथों की जरूरत नहीं है, The world needs your hand. और दुनिया को तुम्हारे हाथों की जरूरत है। Come on, somebody shout दुनिया को hallelujah. तुम्हारे हाथों की जरूरत है अब। Pastor, you prayed and nothing happened. ओ पास्टर, आपने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, Because God never wanted to do something with my hands now. क्योंकि परमेश्वर अब चाहता ही नहीं था कि वो मेरे हाथों के द्वारा काम करे। Yes, that's right. Wake up, wake up. जागिए जागिए, Tell your neighbor, wake up. अपने पड़ोसियों को थोड़ा हिलाइए, कहिए जाग जाइए, Wake up. जागो जागो Wake up. जागो। Hallelujah. हालेलुया, Wake up. जाग जाइए। You don't need anybody's hand now. अब आपको किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। 10 years mature believer. 10 साल का परिपक्व विश्वासी Don't behave like babes in the Lord. और प्रभु में एक बालक के समान बर्ताव नहीं करता है। God is looking for your hands. परमेश्वर आपके हाथ को ढूंढ रहा है। God is looking for your hands. परमेश्वर आपके हाथों को ढूंढ रहा है। If you have not listened, I'm going to repeat third time. God is looking for your hands. अगर आपने नहीं सुना तो मैं तीसरी बार भी यही बात कहूंगा कि परमेश्वर आपके हाथ को ढूंढ रहा है। Somebody shout hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। But many believers, बहुत से विश्वासी लेकिन they want to eat the wormy bread. और वो कीड़े वाली रोटी खाना चाहते हैं। Once again, और कीड़े वाली रोटी वो खाना चाहते हैं। बहुत they से love to विश्वासी eat the wormy bread. उन्हें बहुत पसंद है कि हाँ कीड़े वाली वो रोटी खाएं They want to enjoy the stale food. और वो बासी भोजन का ही आनंद लेना चाहते हैं। I love the stale roti. हाँ मुझे बासी रोटी पसंद है, Stale thing. बासी खाना पसंद है। I don't want to move forward as Paul says. और जैसा पौलुस कह रहा है मैं वैसे आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, I want to move low. और मुझे पीछे जाना है, नीचे जाना है। I want to take, some people say, Pastor, you know what? I think my baptism was not right. Can you give me one baptism again? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पास्टर आपको मालूम है मेरे बपतिस्मा ठीक से नहीं हुआ, क्या आप दोबारा बपतिस्मा दोगे मुझे? I mean, you went in a wrong direction. और कहने का मतलब क्या है आपका कि आप गलत दिशा में चले गए? You went in the wrong direction. और मेरे कहने का मतलब है कि आप गलत दिशा में चले गए थे। You went out of your mind. अपने दिमाग से आप बाहर हो गए थे। You did foolish things. आपने मूर्खता वाले काम किए And पहले, now you're blaming your baptism. और अब आप अपनी बपतिस्मा पर आरोप लगा रहे The हैं। baptism was absolutely right. बपतिस्मा बिल्कुल ठीक था। What do you mean by that? उसका मतलब क्या है? Should I take the ordination again? क्या मैं फिर से नियुक्ति ले लूं? There was no problem in the ordination baptism. और बपतिस्मा और नियुक्ति में कोई परेशानी नहीं The थी। problem is, परेशानी थी I was not moving. मैं चल ही नहीं रहा था। I was not moving. मैं चल ही नहीं रहा था। I was stuck. मैं रुका हुआ था। I was stuck. मैं रुका हुआ था। I was coming to the church, मैं चर्च आ रहा था but stuck. लेकिन रुका हुआ था। I was worshiping, मैं आराधना कर रहा but stuck. था लेकिन रुका हुआ था। I was doing something, मैं कुछ तो कर रहा था but stuck. लेकिन रुका हुआ था। God cannot use stuck and lazy people. और परमेश्वर रुके हुए और आलसी लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता God है। wants to see some moving people. परमेश्वर को चलने वाले लोगों को देखना चाहता है। Glory. महिमा हो। Hey, pastor. Hey, pastor. पास्टर सुनिए, Okay, I was moving, हाँ ठीक है मैं चल रहा था, but then why I was not blessed? लेकिन फिर मैं आशीषित क्यों नहीं था? Moving is important, चलना जरूरी है, but moving in the right direction is more important. लेकिन सही दिशा में चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। Hello. सुनिए सुनिए Are you सुनिए, listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Moving is important, चलना जरूरी है, but moving in the right direction लेकिन सही दिशा में चलना is more important than moving. वो चलने से भी ज्यादा जरूरी है। If you're moving in the wrong अगर आप direction, गलत दिशा में चल रहे हैं it's better to stuck. और इससे अच्छा होगा कि आप रुके रहे। जवानों, यस, जवानों, चलना जरूरी है, पर सही दिशा में चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गलत दिशा में जा रहे हो तो मत चलो, रुक जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। Oh, come on somebody. यस, Come on somebody. I love Paul.
मुझे पौलुस बहुत पसंद है I always call him Great Paul. और मैं हमेशा कहता हूं महान पौलुस. It's tough to understand his epistles sometimes. और उसकी पत्रियों को कई बार समझना मुश्किल हो जाता है. It's tough to understand what he writes. कई बार समझना मुश्किल हो जाती कि वो क्या लिख रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Are you listening, people? क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Some people who have been walking in the wrong revelation actually. कुछ लोग गलत प्रकाशनों में चल रहे थे And wrong direction और actually. गलत दिशा में भी. Pastor, I love your sermon. I heard that you were talking about moving. I was moving. 10 years I have been moving. Why no fruit? Why there is no development? What happened, Pastor? ओ पास्टर, मैंने आपके प्रचार को सुना, मैं उत्साहित हो गया, मैं तैयार भी हो गया, मैं चल तो रहा था, 10 साल से मैं चल रहा हूँ. फल क्यों नहीं है? आशीष क्यों नहीं है फिर? Yes, my dear sister. हाँ मेरी प्रिय बहन, God called you to Nineveh. परमेश्वर ने आपको निनवे बुलाया And you were going to Tarshish. और आप तर्शीश भाग रही थी. Instead of producing the right fruit, और सही फल पैदा करने के बजाय, instead of producing peace and joy, शांति और आनंद पैदा करने के बजाय, in Tarshish में you are producing anger, bitterness, frustration. आप गुस्सा, जलन, कड़वाहट को पैदा कर रही हैं. Come on, somebody shout hallelujah. हालेलुया. Jonah योना was moving, वो चल रहा था but not moving in the right direction. लेकिन सही दिशा में नहीं चल रहा था. And you know what? तब जानते हैं, The amazing part of the story इस is कहानी की सबसे बड़ी और अच्छी बात है, when we move in the wrong direction, जब हम गलत दिशा में चलते हैं inside conviction tell us you're moving wrong. और हमारे अंदर एक बार बात आती है कि तुम गलत चल रहे हो. Because that Holy Spirit, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, the best job of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सबसे उत्तम काम जो है, if you are really close to God, He will never allow you to live peacefully with Him if you are having the Holy Spirit. अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और परमेश्वर के आप नजदीक चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप कभी भी आराम से नहीं जी सकेंगे. This Jonah, ये योना, he was so convicted that everything is spoiled, everything is destroyed, everything is in problem, the whole ship is in the problem, the whole people on the deck are in the problem, only because of me. And he said, you know what, if you throw me out, everything will be solved. और योना को देखिए, इतना ज्यादा वो उस बात से कायल था कि उसको मालूम था ये जो भी तबाही हो रही, जो भी बर्बादी हो रही है, वो उसकी वजह से है. जो भी जहाज पर नुकसान हो रहा है, जो तूफान आ रहा है, उसकी वजह से. और अगर इन्होंने मुझे इस जहाज से फेंक दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा. Some people know, कुछ लोग जानते हैं, if I would be thrown out of the leadership, everything will be fine. कि अगर मुझे लीडरशिप से बाहर कर दिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. If I am thrown out of the ship, everything will be अगर fine. मुझे जहाज से बाहर फेंक दिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. Yeah, you're thinking right. हाँ, आप सही सोच रहे हैं. But God is merciful. लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है. He doesn't want you to be thrown out. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बाहर लेके But जाएं, He wants you to लेकिन वो ये चाहता है come back in your senses कि आप अपने होश में वापस आएं and go back to Nineveh. और वापस निनवे जाएं, Go back to the Nineveh. और वापस निनवे जाएं. So whole this replication team is going to the Nineveh. ये पूरी रेप्लिकेशन टीम मिलकर निनवे जा रही है. And the Nineveh of this 2023 is larger than the Nineveh of. और अब देखिए, वो पुराने नियम के निनवे से ज्यादा बड़ा निनवे वो इस समय का 2023 का निनवे है. Listen, listen, listen. सुनिए फिर से सुनिए. Don't go to chicken or kitchen. Listen to me. चिकन और किचन में मत जाइए, आ रही है. The Nineveh of our era और हमारे युग का निनवे is enormous than the Nineveh of that time. वो उस समय के निनवे से आज के खातिर बहुत ही बड़ा निनवे है. So some 1,000 years ago, God could handle that Nineveh with one Jonah. तो परमेश्वर हजारों साल पहले एक योना से निनवे को संभाल सकता था. He could manage to save the Nineveh with one Jonah. और एक योना के साथ वो निनवे को बचा सकता था उस समय. But in today's Nineveh, लेकिन आज के युग, आज के निनवे में God wants millions of Jonahs. परमेश्वर को लाखों और करोड़ों योना चाहिए. In every church, हर एक कलीसिया में, in every ministry, हर एक सेविकाई में, He is going and choosing some and picking some Jonahs. और वो जा रहा है और कुछ योनाओं को चुन ले रहा है, निकाल ले रहा है. Come in my team. और मेरी टीम में आ जाओ, Come in my team. मेरी टीम में आ जाओ, Come in my team. मेरी टीम में आ जाओ. I'll take care of your problem. और मैं तुम्हारी परेशानियों का ध्यान I'll रखूंगा, take care of your debts. और तुम्हारे सारे कर्जों का मैं ध्यान रखूंगा. Hey, don't disturb me. और मुझे परेशान मत करो. सुनो, You are busy with your family affair. अपने परिवार के साथ तुम व्यस्त रहे हो, You're busy with your
creepy things. और अपने इधर उधर की बातों में तुम व्यस्त रहे हो, You're busy in back and forth. और बार बार आगे पीछे होने में तुम व्यस्त हो। Come. आ जाओ मेरे पास आओ। I have lot many people who are going to perish. और मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में I could manage to win them with one Jonah. मैं एक योना से मैं उनको जीत पाया था, But today, लेकिन आज it's not possible with one Bishop Robin. और एक बिशप रॉबिन से अब वो नहीं हो सकता It's है, not possible with one Bishop Brian. और एक बिशप ब्रायन से वो नहीं हो पाएगा। Will you give yourself for my word to save those perishing souls? क्या तुम अपने आप को मुझे दोगे ताकि मैं उन नाश होते हुए प्राणों को बचा Somebody सकूं? shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you walk in the wrong road and wrong revelation, it will produce bitterness and frustration. अगर आप गलत दिशा में और गलत सड़क पर चलेंगे तो उसमें हमेशा कड़वाहट और जलन ही आएगी। That is why it is important, it is critical for you to speak to God every day. और इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर से बात करें। Look at me. Look मेरी at ओर me. देखिए, Some people are going, don't worry. और चिंता मत करिए, कुछ जो मेहमान है वो जा रहे हैं। Look at me. Look at मेरी me. ओर देखिए, बाकी सभी लोग। It is critical ये बहुत ही ज्यादा It is गंभीर है, important. ये बहुत महत्वपूर्ण है to speak to God every day. कि परमेश्वर से हर रोज हम बात करें। When we talk to the Father जब हम पिता से बात करते हैं on a daily basis, और रोज बात करते हैं, listen to this. सुनिए इस बात को। Yeah. All the advanced team can come forward. Fill these chairs. और एडवांस टीम आगे आ जाए, यहाँ कुर्सी पे तब Yeah. Maybe I'll finish in maybe 10 minutes. मैं Yeah. बस 10 मिनट में इसको There समाप्त are a lot करूंगा। of things, but I'll just finish fast. और कुछ बातें हैं, काफी चीजें हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त करूंगा। Hallelujah. जल्दी Yeah. से एडवांस टीम जल्दी आप आगे आ जाए। Okay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. You know, I have written almost 13-14 pages and I'm on the second page. और मैंने 13-14 पेज लिखे, लेकिन मैं अभी सिर्फ दूसरे पेज पर हूँ, And that is also not completed. और वो भी पूरा नहीं हुआ है। Okay, listen. सुनिए, Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Church, कलीसिया मेरे साथ हैं? is God talking to you? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? Don't allow Satan to stuck you where you are. शैतान को अनुमति ना दें कि जहां आप हैं वहां ही आपको वो फंसा दे और रोक Don't दे। allow your situation to take you to the places where God doesn't want you to do. और अपने हालातों को अनुमति ना दें कि वो आपको उन जगहों पर ले जाए जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जाएं। Now, Pastor, अब पासवान, how I can move in the right direction? कैसे मैं सही दिशा में चल सकता हूँ? Talking to your Father every day. अपने पिता से हर रोज बात करके, Every day. हर रोज। Some people don't have daily devotions. और कुछ लोग रोज का अध्ययन करते ही नहीं हैं, They don't pray early in the morning. और सुबह उठकर वो प्रार्थना ही नहीं करते, They don't read the word every और day. वचन को हर रोज पढ़ते ही नहीं है। If you do not pray every day and read the word every day, अगर आप हर रोज प्रार्थना नहीं कर रहे और हर रोज अपने वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, then there is one person who is already 24/7 on job. His name is Mr. Devil. और तो हर समय 24 घंटे 7 दिन एक व्यक्ति है जो काम पर लगा हुआ है, वो है शैतान। And he's talking to in your ears every day. और वो हर रोज आपके कानों में बात कर रहा है, All the time. हर समय। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? And if you do not read the Bible, और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, he will convict you. वो आपको कायल कर अपने वश में कर लेगा, He will take you in confidence. वो आपको ले लेगा। Go to Tarshish. Go to Tarshish. तर्शीश जाओ, तर्शीश चलो। But if you read the word, लेकिन अगर आप वचन पढ़ोगे, God will remind you. परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, He will remind you the वो याद promise. दिलाएगा अपने वादों He को, will remind you what he talked to you. वो याद दिलाएगा कि आपने उसने He will remind you, oh mighty man of valor. वो याद दिलाएगा, हे शूरवीर सूरमा, Why are you depressed? तू क्यों निराश बैठा है? Why you think you're failing? क्यों ये सोच रहा है मैं हार गया हूँ? Why you think you're defeated? क्यों ये सोच रहा है कि मैं बस खत्म हूँ? You are a man of mighty man of valor. और तू शूरवीर सूरमा है। Get up! खड़ा हो जा, Get up! खड़ा हो जा। मैं जब छोटा था और अभी भी जवानी तक भी, पिता का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिता बताते हैं, बच्चे हमेशा गड़बड़ जाते हैं। कोई भी बच्चा, प्रभु ने पिता रखे, माता पिता रखे, वो बोलते नहीं इस दिशा में नहीं, इस दिशा में जाना, अभी तुम गलत जा रहे हो, रुक जाओ, इधर जाना। उनकी बातें हमें बुरी लगती हैं, उनकी डांट हमें बुरी लगती है, पर एक अच्छी बात यह है कि वो दिशा कभी बुरी नहीं होती है। डांट बुरी है क्योंकि हमें पसंद नहीं,
जब रोका जाता है तो बुरा है। अब मत खाओ, ये आइसक्रीम बहुत हो गया, ये चीज मत खाओ, तुम्हें परेशान करेगी, प्लेट मत मारो, बंद करो, मोमोज ऑर्डर करना, बुरा है। पर एक चीज बुरी नहीं है, दिशा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिशा सही है। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो रोज प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो रोज वचन नहीं पढ़ते। मेरे एक प्रचार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिन है। अब अगले 7 दिन, अगले 6 दिन आप, शैतान और परमेश्वर फिर से एक सर्किल में घूमने वाले हैं। मैंने जो बोल दिया वो यहां रह सकता है, पर अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते मैं सही दिशा में चाहूं, मैं आज भी विश्वास करता हूं बिना पिता के बात किए हो ही नहीं सकता कि मैं रोज सही दिशा में चल सकूं। Yes, hallelujah. That is why इसीलिए it is important to talk to God daily ये जरूरी है कि हर रोज परमेश्वर से हम बात करें and to listen God daily. और रोज परमेश्वर को सुने भी। If you are everyday Bible reader, अगर आप हर रोज बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, if you are prayerful person, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, there are very less chances that you can be distracted. तो बहुत कम ऐसा अवसर होगा कि आप नाश हो सकें। There are very less chances that you can be diverted और बहुत कम ऐसा समय आएगा कि आपका ध्यान भटके or you can be deceived. और या फिर आप धोखा खा जाएं शैतान से। Are you listening, people of क्या आप सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Are you listening? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Amen. Amen. Listen very carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। So do not allow Satan to take you in the wrong direction. तो शैतान को अनुमति ना दें कि वो आपको गलत दिशा में लेकर जाए। Pray every day. हर रोज प्रार्थना करें, Speak to God every day. परमेश्वर से हर रोज बात करें। You need Him. आपको उसकी जरूरत है। Now the writer of Hebrew is trying to make people understand something very important. अब इब्रानियों का जो लेखक है वो बहुत ही एक अनोखी बात और अलग बात समझाना चाहता है पढ़ने वालों को। He says, you know the law, you know the commandments, you know the Old Testament revelation, but I want you to move further. वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें प्रकाशन मालूम है, तुम्हें पुराना नियम व्यवस्था की पुस्तकें सब कुछ तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सिद्धता की ओर बढ़ो। Move to the perfection. सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। कोई बोले मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना है। मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना है। Some people say, hey, I'm not perfect, I cannot achieve the perfection. और कुछ लोग ये कहेंगे, हाँ मैं तो सिद्ध नहीं हूं, तो मैं सिद्धता को हासिल नहीं कर सकता हूं। जितने पुराने मसीह हैं, जितने बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है। जब भी मैं उनसे बात करता हूं, भाई साहब हम यीशु मसीह के समान थोड़ी ना हो जाएंगे। हम चाहे जितना मर्जी दुआ कर ले, प्रार्थना कर ले, हम यीशु के समान थोड़ी ना हो जाएंगे। जब नहीं हो जाओगे तो यहां क्यों बैठे हुए हो? किसने कहा कि यीशु के समान नहीं हो सकते? कौन सी आत्मा से सुना था यह बात? वो तो कह रहा है कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, और हम कह रहे तो हम उसके बराबर भी नहीं हो सकते। He said, I am the conqueror. और वो ये कहता है कि मैं वो जय पाने वाला व्यक्ति हूं, मैं जयवंत हूं, and you will be more than the conqueror. और वो ये कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर होगे। And we are telling him, और हम उससे कह रहे हैं, no. नहीं, Jesus, यीशु, you are supreme power. और आप बहुत बड़ी ताकत हैं। You are Superman. आप सुपरमैन हैं, Wonderman, और वंडरमैन हैं, Spiderman. स्पाइडरमैन हैं। I am nobody. और मैं तो कुछ भी नहीं I हूं, cannot do anything. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पादरी साहब, हमें तो दुनिया में रहना है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत लेना देना पड़ता है, थोड़ा घुमाना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, आप जो मर्जी थोड़ा बहुत करो, पर बाइबल में नरक थोड़ा बहुत नहीं है, आग थोड़ी बहुत नहीं है, वो निर्धारित है। नरक भी उतना ही है जितना है, और आग भी उतनी है जितनी है। थोड़े बहुत करते रहो, ये थोड़े बहुत के चक्कर में बहुत बड़े नुकसान में फंस जाएंगे। Are you listening? Are you listening? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? People of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to क्या मैं somebody? किसी से बात कर रहा हूं यहाँ पर? It's important to understand the principles and the doctrines. और ये जरूरी है समझना इन सिद्धांतों को, इन बातों को।
We need the doctrines and principles. हमें सिद्धांतों की आवश्यकता है, But once we are taught everything, लेकिन एक बार जब हमने सबको सीख लिया है, now it's time to go to perfection. अब ये समय है कि हम सिद्धता की ओर चलें। कहां चले? कहां चले? सिद्धता की ओर, Moving. सिद्धता की ओर चलें, Moving. सिद्धता की ओर बढ़ें। He says, leave it वो कह रहा है छोड़ दो and move. और बढ़ो। Now, अब सुनिए some more things. कुछ और बातें। If God wants to move you, अगर परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को। सोने वाले बोले हालेलुया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर उससे पहले इसका स्वाद आना बहुत जरूरी है। सिस्टर जसिका कहती हैं, लजीज खाना लाइट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से लजीज मिलेगा। थोड़ा सा लजीज इसको भी सुनिए। When God wants you to move, जब परमेश्वर चाहता है कि आप चलें, before He moves you, He sanctifies you. इससे पहले कि वो आपको चलाए, वो आपको शुद्ध करता है। Yes, amen. Oh, come on. Amen, amen. When Jesus was washing feet, जब यीशु मसीह पैरों को धो रहा था, He said there is somebody who is not pure. उसने ये कहा कि कोई एक ऐसा है जो शुद्ध नहीं है। Somebody in the group, और कोई झुंड में ही है, somebody in my team, और मेरी टीम में ही कोई ऐसा है, somebody chosen by me, और कोई ऐसा जिसको मैंने ही चुना था, but he is not pure. लेकिन वो शुद्ध नहीं है। He wants to betray me. वो मुझे धोखा देना चाहता है। Whenever you are in a team, जब कभी भी आप एक टीम में हैं, be faithful. विश्वास योग्य रहें। Whenever you are in a team, जब कभी भी आप एक टीम में काम कर रहे हैं, whenever you are trusted by some people, जब कभी भी आप पर विश्वास किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, be pure. शुद्ध रहें। Be pure until you are there. If you don't like, leave and go, but be pure until you are there. और जब तक आप वहां पर हैं तब तक आप शुद्ध रहें, चाहे आपको वो पसंद ना आए, लेकिन वहां से एक समय हो सकता है कि आप छोड़कर चले जाएं, लेकिन जब तक हैं तब तक विश्वास योग्य रहें और शुद्ध रहें। How many want to listen more? कितने लोग और सुनना चाहते हैं? So before He moves you तो इससे पहले कि वो आपको आगे चलाता है towards the perfection, सिद्धता की ओर towards the greater things, और महान कामों की ओर, He wants to sanctify you. वो आपको पहले शुद्ध करना चाहता है। What is sanctification? और शुद्धता क्या है? Sanctification is actually separation. और शुद्धता का मतलब है अलग करना। Come on, somebody. क्या कोई मेरे साथ है? He wants to separate you. वो आपको अलग करना चाहता है। कितने लोग सुने? आपको चलाने के लिए उसको पहले आपको शुद्ध करना। आप जिंदगी में चल नहीं रहे ना, एक ही जगह खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, घर अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, मसीहत अच्छी नहीं चल रही, चर्च आ रहा हूं पर सूखा सूखा लग रहा है, बस आई जा रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि या तो आप सही दिशा में जा नहीं रहे, या जो मैं बोलने वाला हूं वो हो रहा है। सुनिएगा, He wants to sanctify you. वो आपको शुद्ध करना चाहता है। And how He does the sanctification? और वो शुद्धता कैसे करता है हमारे साथ? By separation. हमें अलग करके। He wants to separate you from the people in your life who are not moving. और वो आपको आपके जीवन में उन लोगों से अलग करना चाहता है जो आपके साथ नहीं चल रहे हैं। Those who are not moving. जो चल नहीं रहे अपने जीवन में, They are stuck in their life. वो अपने जीवन में रुके हुए हैं। Only thing they talk is anger. और केवल एक ही बात वो करते हैं, गुस्सा। Only thing they talk about failure. केवल हार की बात वो करते हैं। Only thing they talk about is और negativity. केवल नकारात्मक बातें वो करते हैं। They only talk about the failures. और वो हमेशा असफलता की बात ही करते हैं। They even don't have desire to move forward. और यहाँ तक कि उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं है। If you don't have a desire to go forward, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं आगे बढ़ने की, soon you will lose the interest in everything. तो बहुत ही जल्दी आप सब चीजों के अंदर से इच्छाओं को खो देंगे। You will not want to come to church. आप कलीसिया जाना नहीं चाहेंगे। You don't want to pray. आप प्रार्थना करने का मन नहीं You करेगा। will not want to read your Bible आपकी बाइबल पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, because क्योंकि you are not going in the right direction. क्योंकि आप सही दिशा में नहीं Or चल you रहे are हैं, stuck somewhere. और या फिर आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। People who look for blessing and miracles, वो लोग जो अद्भुत काम और चमत्कार को ढूंढते हैं, they become occasional Christians. और वो अवसर वाले विश्वासी बन जाते हैं। Once again, कभी और वाले. कभी वाले विश्वासी बन जाते हैं जो लोग चमत्कार ढूंढते हैं। Why? क्यों? They got healed, they got delivered, they got blessing. Now they are enjoying their AC, car, sofa, luxury, Mauritius,
and hulululu. और अब देखिए जब उनको उनकी चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, उनकी आशीषें मिल गई, अब वो अपने घर में बैठ के एसी का आनंद ले रहे हैं, अपनी गाड़ी का आनंद ले रहे हैं, अपने घर का आनंद ले रहे हैं, मॉरिशस का आनंद ले रहे हैं और अलग अलग घूम रहे हैं. You know what time they will come next? What is the next time when they'll come to church? और क्या आप जानते हो अगली बार कलीसिया कब आएंगे? Pastor, I got my son married from a girl USA, but now the problem is it's been 5 years. I didn't come to church. They're not having baby, Pastor. और पासवान जो मेरा बेटा है उसकी शादी अमेरिका के लड़के के साथ हुई है. अब तो परेशानी ये भी है कि 5 साल से ना मैं कलीसिया में आया भी नहीं. अब प्रार्थना करिए, उनको बच्चा नहीं हो रहा इसलिए प्रार्थना करनी है. और प्रभु कैसे पहचानता उनको? हिंदी में सुनिएगा. प्रभु कहते देखो आ गया मेरा भिखारी. क्योंकि भिखारी कभी कभी आते हैं और उसके बच्चे हर समय उसके साथ रहते हैं. Amen, amen. Hallelujah. Come on, somebody. Yes. Come on, somebody. Glory. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं. अच्छा हो बुरा हो, आज मूड ऑफ है, बेकार है, मैं तो उसका बच्चा हूं. मुझे उसके भवन में जाना ही है. मुझे उसके भवन में जाना ही है. पापा से मिलना है, यीशु पापा से मिलना है, डैडी से मिलना है, पिता से मिलना है, उसकी आराधना करना है. पर ये वाले कौन से? छत लग रही है, छत लग रही तो मुंह घुमा लिया. और बच्चा चाहिए. पास्टर साहब घर पे आना है आपको मेरे. मटन बिरयानी, चिकन कोरमा. हाँ, जो लोग चर्च नहीं आते, ये मिरेकल सीकर्स, ब्लेसिंग सीकर्स, और ये आशीषों को और चमत्कार को ढूंढने वाले लोग दे आर हैं. गुड इन हॉस्पिटैलिटी. और वो पहनवाई करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, मेहमान नवाजी करने में. कम ऑन समबडी. हालेलुया. हेलो हेलो हेलो. द फरीसीज, और वो फरीसी दे वर वेरी गुड. वो बहुत अच्छे थे. इनवाइटिंग जीसस. यीशु को बुलाते हैं वो. इनवाइटिंग जीसस. यीशु को बुला रहे हैं. देखिए इनवाइटिंग हिम. यीशु को बुला रहे हैं. जीसस इन माय हाउस. और यीशु आया है मेरे घर में. बट देयर वाज वन चाइल्ड ऑफ गॉड. लेकिन एक परमेश्वर का बच्चा था. वन डॉटर ऑफ गॉड. परमेश्वर की एक बेटी थी. अवे फ्रॉम द फादर. और पिता से दूर थी. That day the daughter ran to Jesus. और उस दिन वो बेटी यीशु के पास दौड़ कर आती है. And put the perfume on his feet. और वो इत्र उसके पैर में उड़े. And washing with her ear. और अपने बालों से उसको पोंछने लगती है. And Jesus said, और यीशु ने कहा, all your sins are forgiven, daughter. जा बेटी तेरे सारे पाप क्षमा हो गए. Nowhere in the Bible, बाइबल में कहीं पर भी Jesus appreciated the mutton korma and chicken biryani of the Pharisees. यीशु ने बाइबल में कहीं पर भी फरीसियों के मटन कोरमा और बिरयानी को कभी भी सराहा नहीं. यार मेरा बंद मत कराना, मैंने विजिटिंग करनी है अभी. पादरी साहब ने स्टेज से बोला था अभी कुछ नहीं देंगे इनको, भिंडी खाओ. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु को भिखारियों के बारे में और बच्चों के बारे में मालूम है. यस. बच्चे सदैव उसके भवन में रहते हैं. आमीन. हालेलुया. बच्चों के जीवन में अच्छा और बुरा, मैं अगर मेरे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं या मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं क्या छोड़ दूंगा अपने पिता को? मैं क्या बोलूंगा, पापा बहुत हो गया आपका, बस बहुत हो गया, अभी मैं एक दूसरा पापा ढूंढने जा रहा हूं. हेलो. हालेलुया. हालेलुया. नो 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 नो. नहीं. I have to be with my father. मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है. Amen. Amen. Father is a relationship, buddy. और पिता तो एक रिश्ता है. I cannot leave him. मैं छोड़ नहीं सकता उन्हें. But भिखारी, hey, मिल गया, चलो 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 चलो, मिल गया. वो तो 1000 बापों के पास भी जाते हैं, इधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, और जब फिर तक गए बच्चा नहीं हो रहा, चर्च में चलते हैं अपने वाले में जहां हमारी मेंबरशिप है. 5 साल हो गए गए नहीं, पर मेंबरशिप तो वही की है. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? बहुत अलग अलग नाम दिए गए इन भिखारियों को. कुछ लोग कहते हैं GEC क्रिश्चियंस, गुड फ्राइडे, ईस्टर एंड क्रिसमस क्रिश्चियंस. और गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस पर आने वाले क्रिश्चियंस मसीह. हाँ, मेनलाइन चर्चेस में बहुत हैरान हूं. होली कम्युनियन में 2000, बाकी 3 संडे 500, फिर होली कम्युनियन में 2000. अरे भाई जब तुम 3 संडे आ ही नहीं रहे तो होली कम्युनियन में किस लिए लेने आ रहे हो?
communion is all the time, 24/7. और संगति सहभागिता 24 घंटे होती है, हर समय होती है, 7 दिन होती है। What do you want to declare? आप क्या बोलना चाहते By हैं coming just one Sunday. कि एक रविवार आकर Somebody shout hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। People who don't have a desire to move forward, they only have a desire to make you angry, to talk frustration, to talk negativity, to talk failures. If you see these signs, it means you need to little stay away because they are not moving forward. People who don't move forward, they talk bitterness. और वो लोग जो आगे नहीं बढ़ते और जो लोग रुके हुए हैं, हमेशा वो नकारात्मक बात करेंगे, हमेशा चिढ़कर बात करेंगे, हमेशा गुस्से में बात करेंगे। और अगर आपको दिखता है ये चिन्ह ऐसे लोगों में है, तो आपको उनसे दूर रहने की जरूरत है। थोड़ा Can I talk a little more? थोड़ा सा और मैं आपसे बात करूं। 5 मिनट और बात करूं क्या? वैसे तो खत्म नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। एक्चुअली कल बिशप रॉबिन और रेवरेंड जेसिका बोलते कि नहीं आपको देना है। अब इतना बड़ा हो गया कि मुझे अब 2-3 संडे और देना पड़ेगा। So no problem, but I believe this will bless you. मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आपको ये आशीष देगा। You will not want to go to a school if you don't want to grow. आप स्कूल नहीं जाना चाहेंगे अगर आप बढ़ना नहीं चाहते हैं। You don't want to come to church if you don't want to grow. अगर आप कलीसिया नहीं आना चाहेंगे अगर आप बढ़ना नहीं चाहते हैं। Some people don't go in any meetings. कुछ लोग किसी भी मीटिंग में नहीं जाना चाहते। They think they are mature. वो सोचते हैं हाँ हम परिपक्व हैं। No, 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 no. नहीं 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 नहीं। Why would God do something in your life? क्यों परमेश्वर कुछ काम आपके जीवन में करेगा? You know why? क्या आप जानते क्यों? Because you don't need a petrol in a car that you don't drive. क्योंकि आपको उस गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है जिसको आप चलाते ही नहीं है। कुछ ने सुना, कुछ ने ये बर्तन देखा। बर्तन मत देखिए प्लीज, मुझे देखिए। अभी आप सबको मिलेगा, छोड़ दीजिए। उधर चला गया मेरा जो बात मैंने बोली, वो बकेट में डाल दिया आपने। Once again, listen, listen. सुनिए फिर से सुनिए। Once again, सुनिए फिर से इस बात को। You don't need a petrol in a car that you don't drive. आप जो गाड़ी चलाते ही नहीं है, आपको उस गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है ही नहीं। God will not fill somebody whom he is not going to use. और परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को भरेगा ही नहीं जिसको वो इस्तेमाल ही नहीं करने वाला। भर दे मुझे, भर दे मुझे, अपने रूह से भर दे, पाक रूह मुझे अपने मज़ा से भर दे। प्रभु कहेगा किस लिए भरूं? भिंडी काटने के लिए, टिंडे बनाने के लिए? क्या भर दे लगा रखी है? Somebody shout hallelujah. तो जब हम ये कहते हैं भर दे क्या मुझे भर दे मुझे भर दे, तो प्रभु अपने दिमाग में एक निन्वे को याद करता और वो गाता है स्वर्ग से, कर दे थोड़ा रहम हम पे भी कर दे, निन्वे को चले जा। Come on somebody, hallelujah. Whoa. I want to fast. मैं उपवास लेना चाहता हूँ। I want to pray for 2 hours. मैं 2 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूँ। I want to speak in tongues. मैं अन्य भाषा में बोलना चाहता हूँ। And after that, उसके बाद I want to make roti. हाँ मैं रोटी मिलना चाहती हूँ। I want to eat spring rolls. और मैं स्प्रिंग रोल खाना चाहता हूँ, मोमोज खाना चाहती हूँ। हेलो सुनिए, खाइए जो खाना है। निन्वे भी चाहिए। You have to go to Nineveh. आपको निन्वे जाना चाहिए। You do not recharge the phone that you don't use. आप उस फोन का रिचार्ज नहीं कराते हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते। पास्टर जी, मेरे को ऐसी बहनें मिलती, पास्टर जी प्रभु ने उपवास में सबको छुआ, मुझे क्यों नहीं छुआ? मैं तो कहता हूं बहन, जिनको छुआ वो भी गलती की। जिनको छुआ वो छुई मुई बन गई घर में। प्रभु कह रहा है इसलिए छुआ था कि किसी निन्वे को बचाए। Yes. Come on somebody. Yes. Hallelujah. इसलिए छुआ था so that you can be in the motion. और ताकि तू चलन में आ सके। Hallelujah. Hallelujah. फास्टिंग खत्म होते ही रेवरेंड जेसिका ने प्लान बना दिया, बिशप रॉबिन ओके चलिए
अमृतसर, तरन तारण, अमृतसर, come on, move, और चलो, move, चलन में आ जाओ, move, अब आपको चलने की जरूरत है, hallelujah, हालेलुया, we need to move. हमें चलने की जरूरत है। The only people get hungry and need fuel in their bodies who are moving. और उन्हीं लोगों को भूख लगती है और वही लोगों को अपने अंदर ऊर्जा चाहिए जो लोग चल रहे हैं। जितने भी कहते हैं 21 दिन का उपवास मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, प्रभु ने मुझे दबा दबा के भरा, हिला हिला के भरा, इतना हिल रहा था मैं संभालना मुश्किल हो रहा था, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। पूरा एक फोटो है हमारी फास्टिंग प्रेयर की, यहां से वहां तक प्रजा लेटी पड़ी हुई है और मुंह के बल गिर के प्रभु को प्रणाम कर रही है। प्रभु कह रहा है तुम मुंह के बल गिरे और इतने दिन हो गए, उपवास का हफ्ता खत्म हो गया, अभी गिरे पड़े हुए, उठो, भागो, जाओ, come on somebody, you know what, क्या आप जानते हैं when Jesus said, जब यीशु ने कहा go into the world, कि तुम दुनिया में जाओ, जगत में जाओ, some people think it's just a simple statement, go, और कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु शायद ऐसे ही कहा होगा, जाओ, go, चले जाओ, no, नहीं। you know how he was saying this, आप जानते हैं यीशु कैसे कह रहे हैं? go, 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 जाओ 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 जाओ, why are you not going, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? I am in urgent need, और मैं बहुत जल्दी में हूँ, my people are perishing, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, my kingdom is waiting, और मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, Satan is working hard, शैतान बहुत काम कर रहा है, Satan is taking my people, शैतान मेरे लोगों को ले रहा है, church go, कलीसिया जाओ जाओ, go in the world, जाओ दुनिया में जाओ, go and save, जाओ बचाओ, somebody give a mighty praise to the Lord, जोरदार स्तुति दे परमेश्वर के नाम को। you got to be in motion, हमें चलन में आने की जरूरत है, you got to be in motion, आपको चलन में आने की जरूरत है। in the church, कलीसिया में we all look same, हम सभी एक जैसे दिखते हैं, we all look same, हम सभी एक जैसे दिखते हैं, but I have a news for you, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक समाचार है। in talking, while talking, और बात करते हुए, the sister looks same like you, और बात करते समय वो बहन आपकी जैसे ही दिखेगी, but you know what, लेकिन क्या आप जानते हैं there can be a biggest difference, एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है, and the difference is और वो फर्क है two sisters, दो बहनें, both church believers, दोनों कलीसिया के विश्वासी हैं, but one is stuck लेकिन एक रुकी हुई है and one is in motion, और एक चल रही है। big difference, बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, big difference, बड़ा फर्क है। बैठे हुए नहीं पता चलता, सचिन तेंदुलकर को घर पे बुलाइए और बैठ जाइए, ऐसा लगेगा आप दोनों एक बराबर हैं, आपके घर में बैठे हैं सचिन, एक बैट दे दीजिए और बॉल कराइए, एक सेकंड में आपको पता चलेगा कि आप दोनों बराबर कभी भी नहीं थे। यस, वो लोग कभी भी बराबर नहीं है जो आत्मा जीतने का काम कर रहे हैं। आमीन आमीन। सिंपल है, साधारण है, आपके साथ बैठा है, पर एक फर्क है, इज इन मोशन, वो चल रहा है, दे आर मूविंग, वो चल रहे हैं। somebody say I have to be in motion, कोई कहे मुझे चलन में होने की जरूरत है, I have to be in motion, मुझे चलने की जरूरत है। praise God, Praise God। that sister looks same sister, वो बहन है आपकी जैसे ही दिख रही है बहन, but you know what sister, लेकिन क्या आप जानती है बहन, you know what brother, लेकिन क्या भाई आप जानते हैं, you are coming in the same church, आप एक ही कलीसिया में आ रहे हैं, you are listening the same pastor and same sermon, एक ही प्रचार और एक ही पासवान को सुन रहे हैं, but you know what, लेकिन क्या आप जानते that हैं, sister is in motion, वो एक बहन चल रही है, it means इसका मतलब है she is constantly changing, वो लगातार बदल रही है, walking, चल रही है, becoming, बन रही है, developing, और बढ़ोतरी कर रही है, and achieving, और कुछ हासिल कर रही है। every day, हर रोज, every day, हर रोज she is doing something. वो कुछ कर रही है। In the next session,
अगले सत्र I'm में going to finish it here. मैं इसको समाप्त यहाँ करूंगा। Next week, अगले हफ्ते I'm going to talk about the tabernacle. मैं आपसे वाचा के संदूक के बारे में बात करूंगा। And there are 3 places in tabernacle. और वहां पे संदूक में 3 जगह है, The outer court, और जो बाहरी आंगन है, the inner court, अंदर का आंगन, and the holy of holies. और अति पवित्र स्थान। And I'm going to give you some more revelation of moving from these 3 places of the tabernacle. और मैं इस संदूक के, इस वाचा के संदूक के चलने के 3 अलग-अलग जगहों से अलग-अलग प्रकाशनों को दूंगा। Can I show you some jalebi? और थोड़ी सी झलक मैं आपको दे देता हूं। Amen. Amen. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? The outer court. जो बाहरी आंगन है, The outer court. बाहरी आंगन जो Very, है, very important to understand. 3 places in tabernacle. और वाचा के संदूक में 3 जगह, Outer court, inner court, and holy of holies. और बाहरी आंगन, अंदर का आंगन और अति पवित्र स्थान। What is tabernacle? और वो तंबू क्या है? It is a place where God dwells. तंबू वो जगह है जहां पर परमेश्वर निवास स्थान करता है, रहता है। You can read in the book of Exodus. आप निर्गमन की किताब में इस बात को पढ़ सकते हैं। And we are going to get some more revelation from these 3 places actually. और इन तीनों जगह से हमें कुछ अलग अलग प्रकाशन मिलेंगे। Let's look at here. सुनिए, मेरी ओर देखिए। This is the outer court. मान लीजिए कि बाहरी आंगन है, And this is the inner court. और ये अंदर वाला आंगन है, And this is the holy of और holies. ये फिर उसके बाद अति पवित्र स्थान है। In the outer court, और बाहरी आंगन में there is a preparation time. एक तैयारी का समय है। God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। Amen, amen. Amen. In the inner court, और अंदर वाले आंगन में He is inviting you वो आपको बुला रहा है to know Him more, कि आप उसे और जानें, to have a relationship with Him. उसके साथ और एक रिश्ता रखें। In the outer court, बाहरी आंगन में you realize one thing. आप एक बात आपने एहसास की There is a lamb कि एक मेमना है slain for you. जो आपके लिए बलिदान किया गया। It means इसका मतलब है you cannot reach directly to the holy of holies. आप सीधा अति पवित्र स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। There is somebody making a way for you कोई है जो आपके लिए रास्ता, एक मार्ग तैयार कर रहा है to go to God. परमेश्वर के पास जाने के लिए। Lot of revelation we're going to talk about. बहुत से प्रकाशनों के बारे में बात करेंगे। So they have ignited the fire, उन्होंने वो आग लगा दी है, and I think this will go for some more weeks. और मुझे लगता है ये आग और हफ्तों तक ऐसी So thank you so much. God bless you all. सभी का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। God bless you. My prayer is that you should move on. मेरी यही प्रार्थना है कि आप चलते रहें। रुकिए मत, बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। रुके हुए लोग, अभी मैंने ज्यादा बताया नहीं है पर मैं अगले भाग में बताने वाला हूं। जो भी चीज रुकी होती है वो बदबू मारती है। सुन के जाइए। रुका हुआ खाना और रुका हुआ पानी, नाली, सब बदबू मारता है और गंदी चीजों को अट्रैक्ट करता है। मक्खियां, मच्छर, कीड़े, कॉकरोच। अगर आप जिंदगी में रुके हुए हैं तो सारी गंदी चीजें, बिटरनेस, कड़वाहट, जेलिसी, जलन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब होगा, ये उन लोगों के पास होगा जो जिंदगी में रुके हुए हैं, क्योंकि रुके हुए लोगों के पास कोई काम नहीं है। पर अगर आप चल रहे हैं, यू आर मूविंग, अगर आप चल रहे हैं, नो स्टिंकिंग, तो आपसे बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द बैड थिंग्स, और आप बुरी चीजों को आकर्षित नहीं करेंगे। तब चलते हुए लोग, अरे सुनना वो बहन बहुत बुरी है, ठीक है बाद में बात करता हूं, मेरे को जाना है, आई एम इन द मोशन, और मैं चल रहा हूं इसलिए। अरे सुनना वो बंदा बड़ा खराब है, ठीक है खराब होगा, मैं चल रहा हूं, मेरे को आई मीन मैं चल रहा हूं मोशन। यू डोंट हैव टाइम टू गॉसिप व्हेन यू आर मूविंग। जब आप चल रहे हैं तो आपको चुगली सुनने का, करने का समय ही नहीं है। यू डोंट गिव योर ईयर फॉर डस्टबिन, और आप अपने कानों को बुरी बातें सुनने के लिए देते ही नहीं है। यू डोंट लिसन पीपल, आप लोगों को नहीं सुनते। Why? क्यों? You are in motion. क्योंकि आप चल रहे हैं। You are in motion. आप चल रहे हैं। Come on, somebody shout hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you so much. और प्रभु आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।